Today, most important topic in inorganic chemistry: coordination compounds or complex compounds. That is a revision for coordination compound. It's a revision for coordination compound or complex compounds only. What are given NCERT textbook? We go for in brief introduction part over here. Thank you. Now, in my previous analysis, compulsory 3 questions are asking from each chapter. See, weightage chapters also the most weightage chapter in inorganic chemistry complex compounds. Right. We are going to discuss what are the keynotes, what are the key points in coordination compound and complex compound. What are the keynotes? First, addition compounds are 2 types. Double salts and complex salts. अच्छा, double salts में क्या होता है? 2 simple salts. These are called molecular salts. 2 simple salts. अच्छा, for your kind information, example है यहाँ example भी लिखा. Double salt का example भी लिखा. अच्छा, potassium अलम का carnallite का नहीं. KCl MgCl2.6H2O. Alright, more salt का नहीं. More salt is FeSO4, NH4 taken twice, SO4.6H2O. This is called more salt. This is called double salt, which is a combination of 2 simple salts, 2 cations and 2 anions. But it lose their identity when dissolved in aqueous solution. Important point is, it lose their identity when dissolved in aqueous solution. Double salts. But complex salts, we know our discussion complex compounds only this chapter only. Take example like K4FeCl6. Like one more example है. अच्छा, one more example है CO NH3 taken 4 times SO4 है. अच्छा, so many examples are there. But main difference between double salts and complex salts है, it gives individual cation anion test in aqueous solution. मतलब it loses their identity. But complex compounds should not lose their identity. It should not give the test for all cations and anion. It uses test for simple cation and complex anion. This is a major difference between double salt and the coordination compounds. Chalo. Achha, generally what are there? What are there in complex compounds? Achha, complex compounds में क्या होता है? Example है. अच्छा, K4 या FeCN6. FeCN6. इसमें क्या है? This is called outside the square bracket is called ionization sphere है. Ionization sphere है. अच्छा, this is metal or metal ion है. Metal or metal ion है. Oxidation state 0 is a metal ion. Carrying any charge is metal ion बोलते हैं. अच्छा, this is called ligand है. This called ligand है. अच्छा, this number को क्या बोलते हैं? हम coordination number बोलते हैं. Coordination number बोलते हैं. अच्छा, for your kind of information, inside the complex है, between metal ion and ligand always what kind of bond is formed है? Day-2 bond है, coordination bond है. अच्छा, again ligands में types हैं. Monodentate ligand है, bidentate ligand है, polydentate ligand है, like unidentate ligand है, neutral ligand है, positive ligands है, different types are there. अच्छा, in entire coordination compounds है, what are the we are seeing in this like ionic sphere है, coordination sphere है. Inside the coordination sphere, what are the metal ion and ligand? That only we are going for discussion. देखो, what is the central atom? देखो, what is central atom? Then ligands है. अच्छा, chelating ligand क्या होता है? Formation of a ring complex. Chelating ligand से मतलब bidentate ligand, tridentate ligand, polydentate ligand को बोलते हैं chelating ligand. अच्छा, ring formation complex को chelating ligands होता है, which are more stable than monodentate ligands.
अच्छा एम्बिडेंटेड ligands are very much example है. अच्छा most of the time questions yesterday also one question asked that alkyl halide react with AgNO2 KNO2 KCN AgCN ambidentate ligand. Ambidentate ligands are monodentate ligand but both elements have capable of donating a pair of electrons. अच्छा बेस्ट एग्जांपल देखो ये नाइट्राइटो एन है डोनेटिंग ग्रुप इज नाइट्रोजन है. अच्छा ये नाइट्राइटो वो बोलता है इसका नाइट्राइटो वो देखो ये नाइट्राइटो वो ना डोनेटिंग ग्रुप इज ऑक्सीजन. अच्छा both atom can capable of donating a pair of electrons is called ambidentate ligand. अच्छा ambidentate ligand whenever a complex having ambidentate ligand they can show linkage isomery. अच्छा one of the condition for ambidentate ligand they can show linkage isomery. अच्छा भवानी प्रसाद अच्छा they can show the linkage isomery देखो. Next coordination sphere and what is the coordination number of ligands based on coordination number we can predict the geometry of the complex coordination. Later we discuss VBT valence bond theory में based on coordination number predict. अच्छा what is the coordination number means number of ligands attached to the central atom is called coordination number. अच्छा oxidation number of the metal है. अच्छा we know already discussed the stoichiometry how to find oxidation state is very simple for you how to find out oxidation number of the metal. अच्छा देखो यहाँ denticity what is the denticity means which can donate one pair of electrons called denticity. अच्छा for your kind information अच्छा most frequently asked question for neutral these are called neutral ligands. आप देखो neutral ligands है most frequently. अच्छा we know triphenyl phosphine है. अच्छा where we use है Wilkinson catalyst है. आपको मालूम है what is Wilkinson catalyst है? Wilkinson catalyst है. अच्छा आपको मालूम है क्या PH3P taken thrice अच्छा RHCl this is called Wilkinson catalyst है where we can use triphenyl phosphine है. अच्छा what is use of Wilkinson catalyst है for hydrogenation of alkenes है. The importance of complex compounds में we discussed है. What is the Wilkinson catalyst का what is the role है nothing but hydrogenation of alkenes है. देखो hydrogenation of alkenes है nothing but hydrogenation of alkenes है. Hydrogenation of alkenes है. Wilkinson catalyst है. अच्छा देखो इंपॉर्टेंट है pyridine है इंपॉर्टेंट है अमोनिया इंपॉर्टेंट है मिथाइल अमीन है वाटर है वाटर को क्या बोलता है एक्वा बोलते हैं. कार्बोनाइल है फ्रीक्वेंटली यूज्ड है. अच्छा नाइट्रोसोइल है NO. फ्लोरो अच्छा फ्लोरो का आईयूपीएसी नेम क्या है फ्लोरिडो. ब्रोमो का आईयूपीएसी नेम क्या है ब्रोमिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो आयोडिडो. अच्छा these are आईयूपीएसी नेम है जनरल आईयूपीएसी नेम है. देखो साइनोको साइनाइडो like frequently asked questions only I am telling you. अच्छा देखो ये वाला नाइट्रो कंपाउंड है नाइट्राइडो. अच्छा frequently asked question है. अच्छा these all are given in NCERT textbook only. अच्छा what is the common name what is the IUPAC name of this complex sorry IUPAC name of the ligands. Dentate means how many pair of electron can donate. One pair of electron is monodentate है. Two pair of electron bidentate है. अच्छा more than two is nothing but polydentate. अच्छा EDTA is the best example for hexadentate. Polydentate EDTA is an example for best example for EDTA is the best example for. अब देख लीजिए ये नाइट्रोनियम positive ligands are given है. Nitronium is also used so many times. Nitrosonium is also used. अच्छा where nitrosonium is used? अच्छा आपको याद है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में. अच्छा व्हाट इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है your H2O taken 5 times NO SO. Here NO का +1 ऑक्सीडेशन लेना NO का क्या लेना नाइट्रोसोनियम लेना.
अच्छा related है, frequently asked questions previously you can relate करो which questions are exactly asked more times on, right? चलो next. अच्छा देखो chelating ligand सब important है. Chelating ligand these are previously monodentate ligand, bidentate, tridentate, polydentate ligand का example है. अच्छा most frequently asked questions are ethene है, ethylene diamine है. अच्छा इथिलीन डायमीन में क्या है, ये फार्मूला क्या है, ऐसा फार्मूला ऐसा लिखो CH2NH2 CH2NH2. अच्छा वी कॉल्ड एज EN है, ई कॉल्ड एज EN बोलता है, इथिलीन डायमीन को EN बोलता है, इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड. अच्छा बाइडेंटेट लिगेंड है एंड आई गो फॉर ओनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ओनली. एक्स्ट्राडेंटेट लिगेंड है, देखो EDTA इज इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है. सम टाइम फॉर्मूला आल्सो आस्क्ड है EDTA का. अच्छा कैसे लिखूंगा EDTA का फॉर्मूला. अच्छा EDTA का फॉर्मूला कैसा लिखूंगा. अच्छा CH2NH2, am I right? अच्छा CH2NH2 इथिलीन डायमीन है. इथिलीन डायमीन में क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन है I can write CH2COO minus. अच्छा CH2COO minus. Again instead of 2 hydrogen I can write CH2CO minus. Sorry, CH2CO minus. That's why what we call as a EDTA 4 minus. अच्छा देखो नाइट्रोजन एक है, दो, अच्छा 3, 4, 5, 6 hexadentate ligand. 4 oxygen can donate a pair of electron, 2 nitrogen can donate hexadentate ligand, most stable complex. अब देखो ये hexadentate ligand देखो. अच्छा CH2 NH2 इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन है, एक देखो एक ग्रुप है रिप्लेस्ड है, एक ग्रुप रिप्लेस्ड है, एक ग्रुप रिप्लेस्ड है, hexadentate. अच्छा एग्जांपल दे में आस्क स्ट्रक्चर आल्सो व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA. अच्छा फॉर अ काइंड फॉर्मेशन एप्लीकेशंस आर गिवन है. EDTA criteria are useful for determining hardness of the water. EDTA criteria are used to remove the lead poisoning. So EDTA criteria are used to remove heavy metal ions. So EDTA criteria are very important, which are given in NCERT applications of complex compounds. EDTA titrations are very much useful for determination of hardness of the water, removal of lead poisoning, removal of heavy metal ions. For EDTA criteria are useful, right? So EDTA formula आप याद करो. What is EDTA formula? अच्छा one more important है, most of the time ask करना है oxalato, nothing but C2O4 2 minus oxalato. Most of the time sir ask करना. अच्छा DMG. अच्छा डाइमेथल, वेयर दिस क्वेश्चन आस्क कर रहा है, डाइमेथल DMG. देखो DMG का क्वेश्चन आस्क कर रहा है, प्रीवियसली यू कैन चेक द प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, DMG का क्वेश्चन है. अच्छा निकिल आयन when react with the DMG. अच्छा cherry red PPT कन्फर्मेंट टेस्ट पर निकिल आयन, कन्फर्मेंट टेस्ट पर निकिल आयन के लिए DMG यूज कर रहा है. अच्छा DMG का काम देख लीजिए कैसा आस्क कर क्वेश्चन है. CH3C डबल बॉन्ड N, CH3C डबल बॉन्ड N. अच्छा बीच में एक बॉन्ड लगा वो. अच्छा यहाँ वो है चाहे तो मैंने यहाँ वो माइनस लगा बिकॉज वो एक आयन. चलो एक और मॉलिक्यूल मैंने लिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ वो माइनस लिख रहा है. अच्छा CH3C डबल बॉन्ड N. अच्छा ये बीच में बॉन्ड है. अच्छा यहाँ वो है. नाउ आई एम टेलिंग यू प्रीवियसली व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अच्छा दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. यहाँ निकिल आयन है. अच्छा निकिल आयन के लिए ए डोनेशन है, D2 बॉन्ड है, अच्छा दिस इज ए कॉम्प्लेक्स है cherry red PPT. अच्छा प्रीवियसली APMT ओनली द क्वेश्चन आस्क्ड है. दिस इज cherry red PPT है. सेकंड पॉइंट कन्फर्मेशन ऑफ, अच्छा कन्फर्मेशन ऑफ Na+2 है,
कंफर्मेशन ऑफ Na+2 के लिए एंड मोर इंपॉर्टेंट इज क्वेवलेंट कॉम्प्लेक्स है and the symmetrical hydrogen bonding is possible. Which of the following is correct? Asked. I think all are correct only. Symmetrical hydrogen bonding. I think 2012 APMT का question है. अच्छा DMG के बारे में they asked the question. Diametric lag exam में निकिल टेस्ट के लिए कैसा? Of course, in metallurgy also we studied complex compound application में. Either silver or gold extracted complex compounds के hydrometallurgy technique. For example, one more application of complex compounds है. We know films are made with AgBr. Photograph film made with AgBr. कैसे develop करता है? By washing with hypo solution. There also complex compounds are formed. अच्छा ऐसा application में they ask the question. Application में, for example देखो. अच्छा आपका best example है. अच्छा photograph film containing AgBr है, right? Photography fixing element है. अच्छा it is washed with what? Hypo. अच्छा क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा? सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट. ये कॉम्प्लेक्स. They ask the question when photography films washed with hypo solution है, which of the following complexes formed? This application of complex compounds में दिया. अच्छा anyhow you might know very well metallurgy में how to extract the silver. Leaching technique. What is the leaching technique? अच्छा सिल्वर एक का ओरिएंटिंग Ag2S है, सिल्वर ग्लांस है. लीचिंग टेक्निक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है. अच्छा दे आर यूजिंग NaCN है, लीचिंग एजेंट इज NaCN. अच्छा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है यहाँ NaAgCN टेकन ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है प्लस Na2SO4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. नाउ यू आर यूजिंग हाइड्रोमेटलर्जी टेक्निक है. हाइड्रोमेटलर्जी टेक्निक क्या है? बाय यूजिंग मोर एक्टिव मेटल लाइक सिल्वर है. Silver is a less active metal है. You can use the sodium. Zinc is a more active metal है. Whenever more active metal है, आपको बनेगा Na2ZnCN taken 4 times. अच्छा ये. अच्छा all these applications are given in NCERT textbook है. अच्छा where complex compounds are widely used in our daily life. अच्छा where this complex compound they may ask the questions on. Right, ferric ferrocyanide में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद है या Fe4 या FeCN6 taken thrice है. अच्छा this is also complex compound test for नाइट्रोजन के लिए. पर्शियन ब्लू कलर ग्रीन कलर है, एक ग्रीन कलर है, पर्शियन ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है. अच्छा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसएनसी टेस्ट बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से. These are all applications of complex compounds. So they may ask, because I am not going for outside the NCERT. What are applications are given NCERT? I am going to explain because this chapter plays very important role. Complete top priority inorganic chemistry में top priority कौन है? Complex compounds. Say question 2 or 3. If you are lucky, then 4 questions also asked because this time 5 questions are increased. 4 questions also मतलब 20 marks का question chapter weightage है complex compounds का. Not only one question, 2 question है. Maximum 3 to 4 question they are asking. अच्छा I said ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमोड रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, लाइक एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है. अच्छा ऑल 5 टॉपिक्स टुगेदर है मोर देन 50 प्लस मार्क्स. ओनली 5 टॉपिक्स में मोर देन 50 प्लस मार्क्स है केमिस्ट्री इजीली. अच्छा देखो DMG का क्या है? ये DMG का फॉर्मूला है, राइट? DMG का फॉर्मूला. अच्छा ऐसा लिखो, आपको इजी लगता है ऐसा लिखो, आपको इजी लगता है. मैंने क्या ऐसा लिखा CH3 C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NO माइनस. ये वाला ऐसा एक्सपेंड कर 1 मॉलिक्यूल 1 मोर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से निकिल कॉम्प्लेक्स बनता है, नॉट 1 मॉलिक्यूल से नहीं बनता है निकिल कॉम्प्लेक्स. अच्छा these are अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली अब these are only restored. EDT already we discussed. EDT कैसा होता है? EDT का कैसा होता है, राइट? नाउ अच्छा आई थिंक 2018 का नीट पेपर है. दे आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर होमोलिप्टिक एंड एक्टोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? व्हाट आर होमोलिप्टिक है, व्हाट इज एक्टोलिप्टिक?
अच्छा, only one kind of the central atom is called homolytic. Only one central atom is there. अच्छा देखो, only one central atom, देखो यहाँ only one central atom है, homolytic है, sorry, homolytic only one kind of ligand है. अच्छा देखो, homolytic is only one kind of, अच्छा देखो given है, अच्छा देखो एक given है. अच्छा देखो, only one type of donor groups, one type of ligands, only one kind of ligands, only one kind of ligands are nothing but homolytic. अच्छा, heterolytic के लिए more than one kind of ligand है. देखो एग्जांपल में देखो दो ligands हैं, एक अमोनिया एक ब्रोमीन, बट एग्जांपल देखो ओनली अमोनिया, homolytic का. अच्छा, mononuclear heteronuclear that is different. Only one central atom is homonuclear, more than one atom is called heteronuclear. But homolytic and heterolytic, I think 2018 NEET का क्वेश्चन है, 2018 NEET का क्वेश्चन था. Which of the following is homolytic and heterolytic complexes? Right? चलो. अच्छा, nomenclature of the coordination compounds, nomenclature of the complex compounds. इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा. एक फार्मूला, कॉम्प्लेक्स आयन कैटआयन के लिए फार्मूला सेपरेट है, एनायन के लिए सेपरेट है, and न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सेपरेट है. We discuss three simple formulas instead of going for all the rules है. अच्छा रूल्स है, ये देखो रूल्स है कैसा होता है, रूल्स है. अच्छा रूल में देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रूल्स है, then I go for very simple example for you. If complex ion is a anion, if complex is anion, अच्छा I go for very simple complex anion. How to name of the compound? अच्छा, first write the name of the cation first. Anywhere name of the cation first. I go for name of the cation first. Name of the cation first. Plus. Now complex ion is anion. Within the complex है, number and name of the ligands you have to write. Number means prefixes you should add. 2 is there, di is added, tri is added, tetra is added. अच्छा देखो number and name of the ligands, number and names of the ligands. अच्छा, more than one ligand you have to go for alphabetical order. अच्छा, chlorine bromine is given है, according to alphabetical order, bromo is added first. Any two different kind of ligands you go for alphabetical order. अच्छा, number and name of the ligands plus name of the metal end with ATE. Name of the metal end with ATE when if complex ion is anion. Plus followed by oxidation state within the Roman letters. अच्छा, I will tell you one simple example है, very simple example है. अच्छा, K4 FeCN6 आपके लिए एक simple example है. अच्छा, पहले लिखो name of the cation है. अच्छा, name of the cation, don't write tetra tri because number and name of the cation is not written. Number and name of the cation is not written over here. They written only name of the cation. मतलब ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम हो गया. Now while naming the complex ion है, first you have to write number and name of the ligand. अरे इसका नंबर है hexa, इसका नंबर है hexa. अच्छा, साइनो की साइनाइडो, when is anion end with IDE, you can add IDO. अच्छा, ITE you can add ITO, ATE you can add ATO. Chloride chlorido, bromide bromido, cyanide, अच्छा cyanide you can add IDO plus the IDO add करो. Cyanido, hexacyanido. अच्छा, if iron is there you can write ferrate, cobalt is there cobaltate, silver is there argentate, lead is there plumbate, metal name is end with ATE. अच्छा, you can write ferrate, then oxidation state you have to calculate करो is 2. कैसे 2 है? अच्छा 4 है plus x है, 6 into -1 है is equal to 0, x is equal to +2. अच्छा, very simple thing. Complex ion is anion. You have to write the name of the complex. अच्छा, one more very simple example है आपके लिए, very simple example है आपके लिए.
अच्छा K2HgI4 क्या बोलते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट है, ये नेस्लर्स रिएजेंट है, आपके लिए एग्जांपल नेस्लर्स रिएजेंट है। अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कॉमन नेम सर। अच्छा आईयूपीएसी नेम बताओ, आईयूपीएसी नेम बताओ इसका। अच्छा पोटाशियम, पोटाशियम टेट्राआइडाइडो, टेट्राआइडाइडो। अच्छा in case of mercury you can write mercurate, mercurate, mercurate आप ऐसा लिखो। अच्छा लिथियम, ये लिथियम, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, हाइड्राइड, आईडी कन्वर्ट इनटू आईटी, आईटीओ। अच्छा लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट 3, कैलकुलेट कर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा वेरी सिंपल फंडा, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज anion, this is a trend, this is a trend, complex ion is anion, this is a trend. Now complex is cation, what is the form? Complex ion is cation, suppose cation. These are some examples, like I go for complex ion is anion, what is the form? How to write complex ion? Chalo shall I, if complex ion is a cation, if complex is a cation, if complex is a cation, then how to write the formula of the complex ion? Very simple. अच्छा एक एग्जांपल देखो, आपको इजी होता है। एक एग्जांपल है CO NH3 taken 6 times Cl, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा whether complex is a cation anion, अच्छा basic thing is you have to write the name of the cation first. Complex is a cation, मतलब first you have to name the complex, then followed by anion. अच्छा now complex में क्या करना, number and name of the number and name of the ligands, name of the ligands in alphabetical order if more than one kind ligands. And here exactly you write metal name only. Don't write metal name is end with AT. Metal name is end with AT only in case of complex ion is anion. In case of cation, just you write only name of the metal, name of the metal plus oxidation state, then name of the anion. Achha, don't write anion name is tetra, try, don't add it. Just like previously, name of the cation, name of the anion. Outside the complex is anion, not illegal. Anion name is anion, but inside the complex, anion name is different. Ligand name is different. Cation name is different. अच्छा देखो ये एग्जांपल देखो आप। अच्छा फर्स्ट हेक्साएमाइनी कोबाल्ट 3। अच्छा डोंट राइट ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड 3 क्लोराइड, 3 chloride. That's very simple one. If you know the formula how to write that, अच्छा no need to require rules now. Just simple formula is enough for you. चलो I will go one more complex है, आप बताओ एक complex का AgNH2 taken twice Cl, इसका complex का IUPAC नेम कैसे? अच्छा diamine silver 1 chloride. अच्छा metal name is metal name, not end with AT. अच्छा diamine, अच्छा diamine silver 1 chloride, silver 1 chloride. So very simple. If you know the formula, it's very simple. Now one more type है, if complex is a neutral, cation, anion, neutral. 3 cases only possibility है. If complex ion is anion, neutral है. If complex is a neutral है, what is the name? If it is a neutral है, complex is a neutral है. अच्छा एक example देखो, CONH3 taken thrice Cl3. अच्छा no cation, no anion, is a neutral है. अच्छा neutral है, complex का name बताओ. As simple as much. अच्छा देखो numbers
and the name of the ligands. अच्छा alphabetical order you have to follow. Plus name of the metal. Plus oxidation state in Roman letter. That's it. There is no cation, there is no anion. Only complex का name. अच्छा number ये देखो amine and chlorido. Amine alphabetical amine chlorido. Which will come first? Amine. अच्छा देखो triamine. Triamine. हाँ देखो triamine. Trichlorido. Trichlorido. Cobalt. Cobalt 3. Cobalt 3 that's it. Oxidation state you have to write. अच्छा in case of ligand में prefixes हैं, we can use bis, twist, tetrakis etc. Ligands में for example अच्छा CO En taken twice Cl2 अच्छा ऐसा कंपाउंड दिया only cation दिया that just you write name of the cation one. अच्छा K plus का नेम क्या है? K plus का नेम क्या है? पोटाशियम आयन. अच्छा ये also लास्ट में आयन ऐड करना. That's it. As simple as that. अच्छा सिंपली देखो नंबर एंड नेम ऑफ द लिगेंड्स वन. अच्छा En का नेम ईथेन 1,2 डायमाइन. अच्छा देखो कैसा CH2NH2 का था. अच्छा नेम ऐसा भी लिख सकता है ईथेन 1,2 डायमाइन ऐसा भी लिख सकता है और इथिलीन डायमाइन को भी लिख सकता है. अच्छा start with E. But Cl start with C. Which will come first? C. अच्छा डाइक्लोरिडो. देखो ऑलरेडी लिगेंड्स में प्रीफिक्स हैं डाई. लिगेंड में प्रीफिक्स हैं. We can use a word special words bis. 2 के लिए bis है, 3 के लिए tris है, 4 के लिए tetrakis है. अच्छा यहाँ 2 है ना, we can use bis. अच्छा you can write bis. Now within the bracket you have to write ethane 1,2 diamine. Within the bracket ethane 1,2 diamine. अच्छा followed by cobalt. अच्छा 3. अच्छा finally you can add ion on because K plus का potassium is not correct है. Potassium ion is only correct है. अच्छा complex के लिए प्लस लिखाना माइनस लिखाना आयन ऐड करना लास्ट में ये आयन ऐड करना. अच्छा nomenclature as simple as much you have to remember the simple formula rather than go for all the rules confusing one. Last minute preparation में कैसा होता है just you remember the formula. That's it. Don't go for अच्छा rule कैसा है कामा कहाँ लिखना है अच्छा alphabetical. That is simple. Right now this is not time to go for complete rules. Just this is the time to just revise how to write the formula of the compounds. That's it. Nomenclature. अच्छा देखो if cation anion both are complex है. Cation anion both are complex है. Then how I will write the name of the complex. चलो एक एग्जांपल आपके लिए. अच्छा CONH3 taken 6 times. अच्छा CrCN taken 6 times. अच्छा cation भी complex है anion भी complex है. Both are complex. First हमारा first problem is to find out oxidation state of each and every metal. इसके लिए मैं हम क्या करूंगा. अच्छा 2 मेटल है 2 मेटल का मैंने 2x लिखा. ये x है ये x भी 2x है 2x है. अच्छा अमोनिया कितना है 6 अमोनिया है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अच्छा 6 साइनाइड आयंस है -1 इज इक्वल टू 0. अच्छा कैलकुलेट करें x इज इक्वल टू +3 होना चाहिए. अच्छा whenever you give the complex ना first is cation then followed by anion. अच्छा पोटेशियम क्लोराइड को मैंने KCl लिखूंगा. Cl के इज इनकरेक्ट. पहले पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज cation है नेक्स्ट पार्ट इज anion. any salt है. अच्छा फर्स्ट पार्ट में मैंने ईच को +3 ना कैलकुलेट करो
x plus 0 is equal to plus 3. अच्छा यहाँ -3 लिख दूंगा बिकॉज यहाँ नहीं आना. अच्छा कैलकुलेट करो x minus 6 is equal to -3 plus 3. Now it is a complex is cation, complex is anion. Name very simple है. Complex is a cation है. What is the name of the complex है? आप बताओ. Number and name of the ligands है. Hexaamine, cobalt, 3. That's it. Now complex is yana है. Hexa, cyanido, chromium, don't chromate, chromium 3. Because both cases में 3 आया ना हमको. Sorry. Here chromate, sir. Anionic complex na, then you can use chromate. Because if whenever complex is anionic, metal name is with it. Chromate. अच्छा ऑप्शन में कंफ्यूज होता है. यहाँ 80 देता है, यहाँ क्रोमियम देता है. अच्छा both केस 80 देता है, both केस में क्रोमियम देता है. So very rarest of the rare cases they are asking both are complex. Okay. One thing very simple है, when both cation and anion complex है, आपको याद करना which kind of isomer, coordination isomer. Condition पर coordination isomer. Both cation and anion should be a complex compounds होना चाहिए. Like ambident to like India linkage isomer जो कैसा link होता है, अच्छा यहाँ भी link है, both cation and anion complex है, they can exhibit coordination isomer. Previously so many times asked है these questions are. चलो I think now this is not required for you, right? अच्छा देखो ये वाला bis कैसा, tris कैसा, tetra tris कैसा, suffixes है, prefixes के लिए use करना. अच्छा very simple फंडा है. Already ligands में prefixes है, then you can use this. अच्छा देखो complex आनी आना है. आयरन के लिए फेरेट है, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट है, गोल्ड के लिए आरेट है, लेड के लिए प्लम्बेट है, टिन के लिए स्टैनेट है. स्पेशल नेम्स 80 end with 80. अच्छा नेक्स्ट वेनस थ्योरी है. अच्छा नाउ यू गो फॉर थ्योरीज है. देन वी गो फॉर थ्योरीज है. अच्छा अकॉर्डिंग टू वेनस थ्योरी मेटल possesses how many valencies are? 2 valencies. Primary valency, secondary valency. Primary valency, secondary valency. Primary valency nothing but oxidation. Secondary valency nothing but coordination number. अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछता है प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी. अच्छा देखो ये आई थिंक इन VBD theory also, VBD theory we can discuss based on coordination number what is the geometry. बट देखो यहाँ से आगे जो क्वेश्चन कैसा बनता है वेनस थ्योरी. सपोज मैंने ऐसा लिखा CO NH3 taken 6 times Cl3. अच्छा CO NH3 taken 5 times Cl. अच्छा CO NH3 taken 4 times Cl2 Cl. सपोज मैंने ऐसे लिखा कॉम्प्लेक्स. They may ask which of the following is the more conductivity. More number of ions or more conductance. The aqueous solution में it gives 4 ions. A complex and 3 chloride. A complex and 2 chloride. A complex and 1. Because in colligative property also, for a colligative property में delta TV is equal to I into M into KV ना. Then they may ask I value. I is number of ions only. Suppose I is equal to 1 ion. Which of the following correct? Which of the following is correct? I is equal to 1 means ये वाला आधा गलत है. I is equal to 1 मतलब ये करेक्ट है. Because I is equal to 1 क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अच्छा आफ्टर कैलकुलेशन I वैल्यू आया. Which of the following complex is correct? You can identify. Here I number of ions are 4 only. 3 chloride 1 complex है. 2 chloride 1 complex है. 1 chloride 1 complex है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट. There is no ionization sphere. अच्छा क्वेश्चन कैसा बनता है आपका? अच्छा you can add excess of AgNO3. In all cases you can add excess of AgNO3. How many moles of AgCl formed? 3 moles of AgCl is formed. अच्छा here 2 moles of AgCl is formed. Here 1 mole of AgCl. Here
No PPT. As you remember, outside how many covalent atoms are there? That number of AG cells will be formed. Outside how many covalent? That number of AG cells will be formed. Outside how many? That number of AG cells is formed. 0. अच्छा, previous last question when स्थिति में ऐसे questions आते हैं. अच्छा, indirectly they can ask I value है. I value आएंगे calculation में. Then they may ask the question complex compounds. Which are the following complex compounds? Correct one. I value they not directly provided to you. You have to calculate I value. After calculation, they want you identify what is the complex is correct for particular numericals. So 100% decision ले लीजिए. Or they which are the following is more conductance. More number of ions, speed of the ion increases, conductance also increases. This is conductance, right? अच्छा, Venus theory में एक क्वेश्चन बनता है. ना Sidgwick theory है. तो effective atomic number है. Effective atomic number है. Effective atomic number में क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है effective atomic number का? Effective atomic number ये है ना, effective atomic number का फॉर्मूला क्या होता है? Atomic number minus oxidation state plus 2 into number of ligands. Number of ligands. अच्छा, suppose any metal having effective atomic number is near to the nearest noble gas complex is most stable according to according to Sidgwick rule. If not equal to next nearest noble gas configuration is unstable. I will tell you this best example according to Sidgwick है. अच्छा, K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, K3FeCN6 दूसरा कॉम्प्लेक्स. अच्छा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहा है. जेड इज एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, इसका सेंट्रल मैटर है. अच्छा, जेड इज 26. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ना, फेरस फेरिक है. अच्छा, यू कैलकुलेट आल्सो फेरस 2 ना +2 into how many ligands are there? अच्छा, 2 into 6 है. अच्छा, ऐड करो 36 आए. आयरन एटॉमिक नंबर कितना है? 26. आयरन के बाद क्या नोबल गैस है? Krypton. Krypton का atomic number 36 है. According to Sidgwick theory, this complex is most stable. But यहाँ देखो, ये फेर्रोसाइनाइड है, फेर्रिसाइनाइड है. आपको मालूम है फेर्रिसाइनाइड. अच्छा, यहाँ डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है. अच्छा, रिमेनिंग सेम है, but you get 35. According to Sidgwick, this is unstable. According to Sidgwick, this is most stable. For example, एक और कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा है मैंने. अच्छा, K2 PtCl6 एक दे रहा है. अच्छा, K2 PtCl4 एक दे रहा है. Which complex is most stable? Then ask according to ये. अच्छा, देखो यह एटॉमिक नंबर का प्लैटिनम का कितना है? 78 है. पैलाडियम का 46 है. आप याद करो. सिल्वर का 47 है. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. अच्छा, प्लैटिनम का 78 है. गोल्ड का 79, mercury का 80 है. Most up to 30 you might know very well. Beyond 30 most frequently asked questions are. अच्छा, देखो ये वाला 78 है. What is oxidation state है? 2 + x - 4 is equal to 0. 4 है. 4 है. 2 into number of ligands 6 है. कितना होता है? 74 + 12 86. 86 का रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल है. मतलब दैट्स व्हाई प्लैटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट स्टेबल है rather than 4 है. वही रीजन देखो. अच्छा, 78 है. ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन 2 है प्लस 2 into 6 है. कितना हो गया? 76 + 12. अच्छा सर, 2 into 4 कितना है? 74 + 8 है. सर 76 + 8 है 84 है. डिफरेंस ये वाला ना 4 है. 8 है + 76 है 84 है. which is मोस्ट स्टेबल है 86. जैसे प्लैटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन 6 कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट स्टेबल. कोबाल्ट के लिए +6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 is most stable. Effective atomic number rules, just formula based questions only they will ask.
in effective atomic number, EAL rule. They mostly they asking these questions. Now, very much important is VBT. देखो VBT में क्या है, ये वाला आपका बंदा है। VBT में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, अच्छा नहीं दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है SP है लीनियर है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है SP2 है प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा हमको प्रॉब्लम आता है दोनों में, हमको प्रॉब्लम आता है इसमें। प्रीवियस लास्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर ये वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में व्हेन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, व्हेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का व्हेन इनर कॉम्प्लेक्स है, व्हेन आउटर कॉम्प्लेक्स है। I think yesterday I sent one video in our group and देख लीजिए VBT special video, we can send one video. अच्छा I will tell you some examples. How we will write the configuration, hybridization for a complex are given. How to find out the magnetic moment. One or two examples we can go for it. Right? अच्छा we know inner complex क्या होता है, outer complex. Inner d orbital use करें ना, this is called inner complex होता है। अच्छा outer orbital use करेगा, जिसका आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा व्हेन वी गो फॉर इनर कॉम्प्लेक्स, व्हेन यू गो फॉर आउटर कॉम्प्लेक्स, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अच्छा जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अच्छा व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, कार्बन डोनेटिंग और नाइट्रोजन डोनेटिंग। कार्बन डोनेटिंग and nitrogen donating ligands are strong fields. अच्छा what whenever strong field ligands है, mostly not all cases, mostly inner complex, mostly inner complex। अच्छा inner complex को हम बोलते हैं low spin complex, low spin complex, right? Here pairing energy is greater than delta naught at number. Well, let me discuss this with you. Pairing energy is greater. Whenever pairing energy is greater, we have to pair up very easily. Strong field ligands के आपके लिए example आपके example है। अच्छा then I go for one more also. After that I give you the example. अच्छा weak field है। अच्छा weak field ने अंडा high spin complex अंडा, high spin complex अंटाम, outer complex अंटाम, outer complex से outer complex अंटाम। अच्छा कार्बन डोनेटिंग, नाइट्रोजन डोनेटिंग, here oxygen donating and halogen donating, oxygen donating and halogen donating। oxygen donating, halogen donating। अच्छा दिस इज समरी है। बीबीटी में मेजर समरी ये वाला है, बीबीटी में मेजर समरी ये वाला। आई विल टेल यू सम एग्जांपल। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2-3 एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का 1-2 एग्जांपल्स। विल फिनिश देन एक्सेप्शंस व्हाट आर। अच्छा 1 or 2 एग्जांपल है। अच्छा देख लीजिए अच्छा बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए NiCO टेकन 4 टाइम्स है, एक एग्जांपल है। अच्छा NiCN टेकन 4 टाइम्स है, 2 माइनस है, एक एग्जांपल है। अच्छा देन एक और एग्जांपल था NiCl4 2 माइनस है, एक और एग्जांपल। देखो वन बाय वन वी कैन डिस्कस। फर्स्ट वन में डिस्कस है। अच्छा इन ऑल 3 कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अच्छा व्हेनेवर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, व्हेनेवर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वी हैव डाउट है, स्मॉल डाउट है। अच्छा वेदर वी गो फॉर sp3 ना और dsp2। अच्छा हमारा मन में 2 डाउट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आइदर 2 चांसेस है, आइदर sp3 या dsp। अच्छा ऐसा कैसे दिखता है, बिकॉज़ फर्स्ट यू हैव टू राइट निकेल, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो, निकेल है यहां भी, निकेल है वहां भी। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 5 फर्स्ट फाइंड आउट है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल।
अच्छा निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 होता है बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज अ न्यूट्रल लिगेंड के लिए 0 होता है। अच्छा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3d8 है 4s0 है 4p0 sorry 4s2 है राइट am I right 28 का एटॉमिक नंबर 3d8 4s2 मतलब shall I write like this sir? अच्छा 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 4p में ब्रेक होता है। अच्छा ये फंडा याद करना हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच्ड है दैट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज़ लिगेंड कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऑलरेडी 3 वेकेंट ऑर्बिटल है 1 मोर रिक्वायर्ड। अच्छा 4 ligands are there ना 4 vacant orbitals are required but 3 only there 1 more required है। अच्छा this is strong field ligand है carbon donating strong field ligand है whenever carbon donating ligands are pairing energy greater than delta naught है। अच्छा we are forced to fill against the Wundt rule मतलब इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रीअरेंज करूंगा दोनों इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज करूंगा दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज करूंगा। now this orbital is now this is completely fill हो गया कंप्लीटली फिल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गया। अच्छा नाउ क्रिएट 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स। अच्छा नाउ sp3 हो गया 1 s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल sp3 हो गया। अच्छा ये देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए ना ये डायमैग्नेटिक होगा। अच्छा डायमैग्नेटिक के लिए म्यू वैल्यू कितना होता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 बोर मैग्नेट है ना राइट n वैल्यू 0 है तो म्यू आल्सो 0 है सिंपल फंडा ये खत्म हो गया। नाउ दूसरा ले अच्छा नाउ आई गो फॉर ये यहां निकल के लिए यहां निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है आप याद कर ये निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है because x minus 4 is equal to -2। अच्छा +2 में कैसा लिखूंगा 3d8 4s0 4p। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम आता है सर 4 ligands are attached ना सर 4 vacant orbitals are required है already 4 is there ना then sp3 no। अच्छा यहाँ देखो ये क्या है strong field ligand है whenever strong field ligand है pairing energy is greater than delta naught है so forced to pair up against the Wundt rule मतलब मैंने 3d8 ऐसा लिखूंगा 1 2 3 अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखूंगा। अच्छा 4s है 4p नाउ फोर्स टू पेयर अप देखो फोर्स टू पेयर अप है ये इलेक्ट्रॉन फोर्स टू पेयर अप है d लो 1 वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगा। अच्छा एक d ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल है 2 p ऑर्बिटल है वी कैन यूज दिस ओनली फर्स्ट 3 ओनली जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में dsp2 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में dsp2 होता है। अच्छा स्क्वायर प्लेनर होता है। अच्छा हियर आल्सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 होना बिकॉज़ n इज इक्वल टू 0 होना दैट्स व्हाई इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ये जो डायमैग्नेटिक होता है मेजर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ वी कम नाउ हियर दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड ना आप बताओ आप मालूम है देखो ये वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन हाइड्रोजन डोनेटिंग लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड है देन आई कैन गो फॉर हियर आल्सो Ni+2 है नो डाउट है। अच्छा 3d8 है 4s0 4p0 अच्छा यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है you should not go for against the Wundt rule ever whenever strong field ligands are there go for against the Wundt rule weak field ligands are we have no chance we have permission not given for you to go for against the Wundt rule you have to strictly follow the Wundt rule only मतलब 4 ligands are there 4 vacant orbitals are required अच्छा 4 यूज करना sp3 देन देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेट करो n into n+2 बोर मैग्नेटन है। अच्छा n वैल्यू कितना है 2 into 2 + 2
root 8, root 9 is approximately 2.89, root 93y. अच्छा, any chance are there? EBT में they may ask hybridization है, they may ask magnetic moment है, they may ask unpaired number of electron है, they ask colors complex है, generally paramagnetic color complex होता है, anything they may ask, hybridization ask, but this में कोई exceptions सुने, some exception cases are there. What are exception cases हैं? It's a very interesting है, exception case है. What are exception case हैं? Palladium 2 complex है, platinum 2 complex है, gold 3 complex है, irrespective of weak field and strong field, whether weak field or strong field doesn't matter. Strong field doesn't matter. It always undergoes DsP2, nothing but sp2. अच्छा, exception. अच्छा, one more exceptional case also. CuNH3 taken 4 times SO4 is supposed to be sp3, but it also undergoes DsP2 hybridization. अच्छा, because we have one doubt है, coordination number 4 में sp3 ना DsP2, but इसमें कोई exception नहीं. Ambiguity is there here. That's why we know platinum complex are example for Scribner geometry. GI के लिए best example है. अच्छा, I think you remember है, cisplatin cancer curing reagent है, cisplatin है. अच्छा, आपको मालूम है PtCl2 NH3 taken twice, cisplatin is cancer therapy के लिए use करता है, cisplatin है. Only Scribner complex can exhibit cis trans isomerism only. Tetrahedral के लिए नहीं है. अच्छा, एक प्लैटिनम का वेदर वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड डजंट मैटर है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दिस इज नथिंग बट, अच्छा, आपको एनी प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सर, प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम पैलेडियम 2 कॉम्प्लेक्स, गोल्ड 3 कॉम्प्लेक्स है, irrespective of the strong field weak field लिगेंड सर, always go for this hybridization, right? चलो, very simple फंडा एक बार. अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक बार देखता है. अच्छा, we conclude fastly. Coordination number 6 का. अच्छा, CONH3 6 times plus 2 complex है. अच्छा, COF6 है 3 minus complex. अच्छा, without writing this general procedure, we may go for both complex are octahedral. Inner complex also, outer complex also, geometry में कोई difference नहीं. Octahedral complex कोई difference नहीं geometry का. अच्छा, क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है D2sp3, am I right? अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड है sp3. अच्छा, इजीली आप लिख सकता है, बट ऑल केस आर नॉट पॉसिबल है, बस सिंपल केसेस में आप लिख सकता है. अच्छा, एक एग्जांपल दिया आपके लिए, एक एग्जांपल दिया, माइट बी देख लीजिए. एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है आपके लिए, एनसीईआरटी में एग्जांपल है. Might be CONH3 plus 3 complex है. अच्छा, NiNH3 6 times plus 2 complex है. अच्छा, दोनों D2sp3 होना चाहिए ना, बोथ अमोनिया से स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. अच्छा, generally we go for what, without writing we go for D2sp3 only, अगर strong field ligands. अब देख लेते हैं कैसा. अच्छा, सिंपल है. अच्छा, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेट 27 है. अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कैसा है? 3d6 होता है, 4h0 होता है, 4p0 होता है, am I right? जनरली 3d7 4s, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, 3d6 4s0 4p0. अच्छा, 3d6 में ऐसा लिखूंगा 1 2 3 4. अच्छा, 4s है वेकेंट है, 4p वेकेंट है. एक्चुअली माने हाउ मेनी वेकेंट आर रिक्वायर्ड? 6 रिक्वायर्ड. हाउ मेनी आर देयर? ग्राउंड स्टेट में हाउ मेनी आर देयर? ओनली 4 इज देयर. अच्छा, देखो 1 2 3 4 5 6, these are vacant already. 4s 4p में वेकेंट है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है. एग्नेस्ट इवेंट्सफुल लेआउट पेयर अप, एग्नेस्ट इवेंट्सफुल लेआउट पेयर अप. अच्छा, दिस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पेयर करूंगा, दिस इलेक्ट्रॉन यहां पेयर करूंगा. देन
d ऑर्बिटल वेकेंट है, 2 d ऑर्बिटल्स है, sp3 नथिंग बट d to sp। अच्छा यहाँ कोई प्रॉब्लम विदाउट व्हाइल सीइंग आल्सो यू कैन राइट, नथिंग प्रॉब्लम, नथिंग वरी अबाउट। यहाँ देखो निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा है, Na+ है मेरे, अमोनियम न्यूट्रल लिगेंड है। Na+2 में क्या लिखूंगा, 3d8 लिखूंगा, 4s0 लिखूंगा, 4p0 लिखूंगा। अच्छा ना मैंने 3d8 लिखा, 3d8 लिखा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 4s है 4। अच्छा मेरे को कितना चाहिए वेकेंट, 6 चाहिए। हाउ मेनी आर देयर, 4 आर देयर। 4s में 1 है, 4p में 2 है। अच्छा 4d वेकेंट है कंप्लीट, मेरे को 4d कंप्लीट वेकेंट है। अच्छा व्हाई आई गो फॉर आउटर ऑर्बिटल, आई एम टेलिंग, सपोज even in the presence of strong field ligand, suppose we are forced to pair up na, अच्छा availability only 1d orbital है। अच्छा we should not use 1d orbital 3d, 1d orbital 4d। if you want use both orbital 3d or both orbital 4d only। अच्छा sufficient number of vacant orbital not possible है, that's why don't do this है, we can use 4sp this 2 one, nothing but sp3d। then number of unpaired electron 2 होता है। अच्छा दिस इज क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। अच्छा बिकॉज़ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, व्हाइल सीइंग स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जनरल हमारा मन में होता है चलो d2sp3 है, बट यहाँ निकल कॉम्प्लेक्स का इसका एम्बिगुइटी है निकल कॉम्प्लेक्स। रीजन क्या है, वी वांट टू यूज d ऑर्बिटल, आइदर यूज कंप्लीटली इनर ऑर्बिटल, कंप्लीटली आउटर ऑर्बिटल, डोंट यूज 1d ऑर्बिटल ओवर हियर, another d ऑर्बिटल एंड आउटर कॉम्प्लेक्स। सो एक्सेप्शन केस है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है व्हिच आर गिवन इन टेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इंटेस्ट क्वेश्चन दिया, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। दिस इज बीबीटी में कंप्लीट है, सो बीबीटी थ्योरी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम बीबीटी ओनली रादर देन सीएफटी। बीबीटी में दे में आस्क ज्योमेट्री, दे में आस्क मैग्नेटिक मोमेंट है, दे में आस्क नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे में आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड है, नॉट कलर्ड है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं, व्हेनेवर यू सी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 फॉर एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया ना, अच्छा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसमें क्या है, लीनियर है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में प्रॉब्लम है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आता आपका। दिस इज वेरी सिंपल है, बीबीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स। प्रीवियसली मोर देन 60% क्वेश्चंस आर फ्रॉम बीबीटी complex compound, more than 50%. Actually, they want to ask 3 questions from complex compound, 1 question from guarantee from BBT, remaining 2 questions from Reante job. So I think you understand BBT है कैसा। Now देखो we explained in of course in briefly only BBT theory। अच्छा ये देखो without writing electronic configuration also we said ना, this is an example for sp3d2 excitation because weak field ligand। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही कॉम्प्लेक्स भी हमने डिस्कस किया, ये पैरामैग्नेटिक होता है, वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। वी डिस्कस ऑल दिस एग्जांपल because these are nickel complex are most of the times are previous class questions। निकल कॉम्प्लेक्स में वैरायटी है। अच्छा मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कलर के लिए, अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर कलर, व्हाई इट इज ऑब्टेन्ड इन कलर कॉम्प्लेक्स ओनली। अच्छा एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अनेबल टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अच्छा ओनली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओनली आइडेंटिफाई व्हिच इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, व्हिच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, दैट इज कॉल्ड CFT, crystal field stabilization energy। From CF crystal field theory only, CFT only, which is a strong field ligand, which is a weak field ligand identified, but the theory you are used over here, that's it। अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप मालूम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है √n × n+2 होल मैग्नेटन है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। अच्छा देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अच्छा आई एम नॉट गोइंग फॉर इन डिटेल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। Crystal field theory ने splitting of d orbital in octahedral complex and tetrahedral complex both are given, splitting of। अच्छा यहाँ भी splitting भी दिया, देखो देख लीजिए आप एक बार,
स्प्लिटिंग है। अच्छा डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखिए आप एक बार, डी ऑर्बिटल का। अच्छा ग्राउंड स्टेट में आप देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट में ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड, फ्री मेटल आयन है डीजेनरेटेड, ऑल आर इक्वल एनर्जी। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अच्छा मेटल है, अच्छा लिगेंड 6 लिगेंड्स है, आई एम राइटिंग 6 लिगेंड्स लाइक वो। अच्छा ये लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड ऐसा। अच्छा अकॉर्डिंग टू सीएफटी इज अ पॉइंट चार्जेस, लिगेंड इज नेगेटिव है, मेटल इज पॉजिटिव। अच्छा मेटल एंड लिगेंड के बीच में the bonding is nothing but ionic bond, electrostatic force of attraction, not a covalent bond. Whenever ligands are approaching towards the metal ion, अच्छा repulsion maximum होता है, a field develop होता है, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है। अच्छा थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है, यहाँ से एनर्जी बढ़ जाता है because of the reason। अच्छा isolated molecule में ligands are away from each other, अच्छा all are degenerate orbital, equal energy। अच्छा some ligands are approaching towards the metal ion है, a field डेवलप होता है, एनर्जी डेवलप होता है, रिपल्शन मोर है, हायर एनर्जी देता है। देन इसके बाद है, यू नो फॉर योर रेफरेंस है, मेटल आयंस में हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर? मेटल आयंस में हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर? देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स है। व्हाट आर डी ऑर्बिटल है? dx² y² है, dz² है। अच्छा हमको क्या बोलते हैं? ईजी ऑर्बिटल। अच्छा dxy yz zx को हम क्या बोलते हैं? t2g ऑर्बिटल। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis, in between axis, right? In between the axis, am I right? In between the axis. Suppose ligands are coming along the axis only because octahedral joint, all are perpendicular along the axis only. अच्छा ligands are negative, electron density metal ion में along the axis किसका? Eg का। So negative repulsions are more है, you go for more energy है, that's why Eg orbital having more energy, T2 orbital having less energy. How much destabilize होता है? High energy means less stable है, low energy means more stable है, इतना destabilize होता है। That's why I will tell you simple formula. I'll tell you simple formula how to find out delta naught octahedral complex के लिए how to find out crystal field stabilization energy, simple formula होता है -0.4 into x plus 0.6 into y। अच्छा what are x and y? number of electrons in T2g orbital, number of electron for Eg orbital। अच्छा देखो, this is not visible, देखो x is a number of electron in T2g orbital, T2g means triply degenerate, x y y z zx is evenly degenerate। अच्छा y is a number of electron in Eg orbital। अच्छा so many times questions are weak field ligand and strong field ligand है ना। अच्छा for your kind information we made one video for John Teller effect है, but which are not given NCERT textbook है। previously 2 times are questions are asked in the examination। John Teller effect है, if anybody want 180 out of 180 just don't miss John Teller effect, you can go for John Teller effect also, but which are not given NCERT textbook है। अच्छा ये फॉर्मूला याद करना कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा आई स्पिन కాంప్లెక్స్ లో అయితే ఫస్ట్ 1 అంటే ఈజీ లో QTG లో 3 ఎలక్ట్రాన్, 4th ఎలక్ట్రాన్ ఈజీ, 5th ఎలక్ట్రాన్ ఈజీ। ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్ లో అలా కాదు, 4th electron enter into EG orbital, TTG orbital, 5th also TTG, 6th also TTG। अच्छा 7th only go for EG, 8th only go for EG। If you have any doubt, we made one video na, already I sent that video in our group hai, you can once again check it how to fill the electron in a weak field ligand में strong field ligand, but formula होता है ये वाला। अच्छा एक बार APMT में क्वेश्चन पूछा, ये को फॉर्मूला भी दे आस्क करा। अच्छा एक और फॉर्मूला भी आस्क करा है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अच्छा डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0.4 into x है, 0.6 into y है, प्लस ZP है। ZP व्हाट इज Z है? नंबर ऑफ पेड ऑर्बिटल्स। अच्छा सपोज T2g में 6 ఉంది అనుకోండి, Z is equal to 3। T2g में completely paid okay orbital number, Z is equal to 1। Z is nothing but number of paid
ऑर्बिटल्स. अच्छा, you go for previously asked APMT का क्वेश्चन है, both formulas का क्वेश्चन सर asked, check it. प्रीवियस आस्कर का APMT क्वेश्चन है, बोथ फार्मूला क्वेश्चन सर आस्कर. व्हेनेवर आपका ऑप्शन में ZP होता ना, ये फार्मूला यूज करो. ZP नहीं होता ना, ये फार्मूला यूज करो. Z is number of paired orbitals, not electrons. Don't take Z is equal to 6, T2G 6 and one. Suppose T2G 6 is दिया, Z is equal to 3 only. Z is equal to 3 only, because 3 paired orbitals हैं, not number of electrons. Z is equal. These two formula based questions also asked previously. अच्छा, टेट्राहेड्रल है, आफ्टर टेट्राहेड्रल उसका उल्टा है. उल्टा का मतलब क्या होता है? ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है. बिकॉज़ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इन बिटवीन एक्सिस होता है, लिगेंड्स है. अच्छा, टेट्राहेड्रल में क्या होता है देखो. अच्छा, ligands are going in between axis, not along the axis. Adjacent position में होता है, along the position में नहीं होता है tetrahedral. So references are more for T2G orbital, ऊपर जाता है नीचे जाता है, but they are asking relation only. Delta naught की delta T की relation 4/9 delta T. They are asking relations only 4/9 delta naught. अब देख लीजिए, ये relation भी आप दिया. अच्छा देखो, ये सीरीज है what we discussed है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, कार्बन डोनेटिंग, नाइट्रोजन डोनेटिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं. फिर ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड्स हैं, दीस आर वीक फील्ड लिगेंड्स होता है. हैलोजन डोनेटिंग लिगेंड्स आर वीक फील्ड होता है. कार्बन डोनेटिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इन CFD, स्टेबलाइजेशन एनर्जी में थ्योरी में दे आइडेंटिफाइड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द लिगेंड्स है. कार्बन डोनेटिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. Nitrogen donating ligands are strong field ligands, whereas oxygen donating and halogen donating ligands are weak field ligands. One of the advantage of this theory. So this is called spectrochemical series बोलते हैं ना. अच्छा देखो, ये फार्मूला भी दिया आपका. अच्छा, फार्मूला भी दिया देखो. अच्छा, ये फार्मूला भी NP दिया. क्या है N? क्या है इसका? क्या N क्या है? N क्या है? प्रोटॉन. हाँ, नंबर ऑफ पेड ऑर्बिटल्स, राइट. चलो, नाउ सिमिलरली. अच्छा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर. मैंने बताया उसका उल्टा है. T2G ऊपर जाएंगे और EG नीचे आएंगे, बिकॉज लिगेंड्स अप्रोच कैसा होता है? इन बिटवीन एक्सिस होता है. ये पहले अलोंग द एक्सिस होता है, ये इन बिटवीन एक्सिस होता है. I think you understand. अच्छा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपका. रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपके याद करें. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपके याद. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली आस्क करें रिलेशन. सम टाइम ना इस वैल्यू देता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी. एनी वन वैल्यू दे विल आस्क प्रोवाइडेड टू यू. दे आस्क वन मोर वैल्यू. व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? आई थिंक 2018 नीट का क्वेश्चन था. 2018 नीट का क्वेश्चन था. 18 और 19 का नीट का क्वेश्चन था. रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट डेल्टा टी, राइट. अच्छा, स्क्वायर प्लेनर नॉट गिवन इन आवर सिलेबस. ओनली टेट्राहेड्रल, ओनली ऑक्टाहेड्रल. स्क्वायर प्लेनर नॉट देयर इन NCERT सिलेबस. अच्छा, कलर, आई थिंक यू माइट नो दैट कलर है D1 टू DD ट्रांजिशन के लिए कलर होता है. But D0, D10 color because of charge transfer phenomena. In D black elements already we studied है. KMnO4, potassium dichromate, these are colored because of charge transfer phenomena. Generally color होता है DD transition. अच्छा, splitting में है color है because DD transition होता है. Color of the complex are nothing but due to DD transition. DD transition होता है. अच्छा, D1 to D9 है, color होता है. But D0, D10 are colorless. Am I right? But some complex are colored because of charge transfer phenomena. Can you tell what are charge transfer phenomena color है? अच्छा, KMnO4 है, color है. But even though Mn+7 है, this is 3D0 configuration. Again color है. एक color है, pink color है. अच्छा, potassium dichromate is also colored है.
ऑरेंज रेड कलर है, here also 3D 0 है। अच्छा K2 CrO4 ऑल आर कलर है। अच्छा मैंने कलर लिखूंगा, आपको कलर पूछेंगे तो ये पिंक कलर है, ये ऑरेंज रेड कलर है, ये येलोइंग कलर है। These are color due to charge transfer, due to charge transfer है। अच्छा charge transfer from ligand to metal, ligand to metal है, ligand to metal। अच्छा metal to metal एक complex ఉంది, Fe4 FeCN taken 6 times thrice, this is also green color, Persian blue color है, due to metal transfer from ligand metal to metal है, ferrous to ferric, ferric to ferrous। अच्छा these are colors में डिग्री ट्रांजिशन में मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। अच्छा यानी एक्सेप्शनल क्वेश्चन दे आर आस्किंग, देयर आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस ऑन। अच्छा लिमिटेशन का क्या मेजर लिमिटेशन सर, इफ सपोज आयनिक बॉन्ड हाउ हाइब्रिडेशन बनता है, हाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ये प्रॉब्लम आता है। बट ये एक्सप्लेन वेरी वेरी गुड how splitting of d orbital in octahedral complex may and this is but according to this theory ionic bond between ligand and metal ion, if suppose ionic compound then flow halide ions are more negative na, halide ions supposed to be strong ligands hona chahiye but halide ions are weak ligands है, one of the major drawback of this theory। अच्छा देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आल्सो प्रीवियसली वंस आस्क्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलता है। अच्छा देखो मैंने फाइनली इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलता है, देखो इज अ स्टेबिलिटी कांस्टेंट है which is inversely proportional to, देखो फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने ऐसा लिखा M4L gives rise to ML4। अच्छा मैंने इसका Kc लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ML4 divided by ML taken 4 times। if Kc value more है, formation is more है, formation is more है। अच्छा रिवर्स रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, दिस इज फॉर्मेशन है, रिवर्स इज स्टेबिलिटी है। अच्छा मैंने ऐसा लिखा ML4 gives rise to M+4L, दिस इज स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ना। अच्छा देखो प्रीवियस दिस इज बीटा, को सपोज बीटा इज अ 1 by stability constant, सर 1 by equilibrium constant, 1 by stability instability constant बोलता है 1 by is equilibrium constant, 1 by Kc। अच्छा सपोज Kc वैल्यू ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, फॉर्मेशन Kc है, रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टेबिलिटी है। अच्छा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है, नॉट डिसोसिएट वेरी इजीली। अच्छा लेस स्टेबल है, कैन डिसोसिएट वेरी इजीली। अच्छा whenever instability constant ask ना, you can go for reverse of equilibrium constant is nothing but instability constant बोलते हैं, right? Next isomerism, simple example isomerism, go for peripheral, we can go for isomerism में क्या क्वेश्चन बनता है, this is I think last concept isomerism। अच्छा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप याद करना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप एनसीईआरटी बुक एक बार ओपन करो, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। जनरली एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए देयर इज नो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा आप ये पॉइंट ऐड करो, इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, exchange of ligand between coordination sphere and annihilation sphere। अच्छा देखो exchange of ligand between coordination sphere and annihilation sphere, simply very simple है, exchange of ligands है between coordination sphere and annihilation sphere। coordination sphere की annihilation sphere की exchange of ligands is called nothing but this is called annihilation sphere।
अच्छा एक और एग्जांपल आपके लिए, एक और एग्जांपल है। अच्छा CO NH3 taken 5 times Cl, अच्छा SO4, and one more example है CO NH3 taken 5 times SO4 Cl। अच्छा आप क्वेश्चन कैसा बनता है आपका, यहाँ बेरियम क्लोराइड दिया एंड AgNO3 दिया, आपका व्हाइट PPT बेरियम सल्फेट बनेगा, यहाँ नो रिएक्शन। अच्छा सिमिलरली आपको बेरियम क्लोराइड दिया, AgNO3 दिया, बट यहाँ भी व्हाइट PPT बिकॉज ऑफ AgCl है, यहाँ नहीं करते हैं। Exchange of ligands between coordination pair and ionization pair, coordination pair and ionization, just exchange of ligands is called ionization, nothing but there। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, you are in comfort zone, which are the following ionization, very simple बंदा है। now solvent क्या है, solvent है, solvent आइसोमेरिज्म कैसे होता है। अच्छा एज ए वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड इज डिफरेंट है। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 5 है, सर 6 है, या 4, एज ए लिगेंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, एज ए लिगेंड 5 वाटर मॉलिक्यूल, एज ए लिगेंड 4 वाटर मॉलिक्यूल అంటే లాటిస్ వాటర్ చూడండి, నో లాటిస్ వాటర్, 1 లాటిస్ వాటర్, 2 లాటిస్ వాటర్, as a ligand water molecule difference called solvent isomerism। अच्छा this is one of the type of ionization isomerism, is not a special isomerism। solvent का मतलब water as a ligand is different, that's it, water as a ligand is different, nothing but। अच्छा लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने बताया, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। अच्छा लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, वन ऑफ द लिगेंड शुड बी एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, वन ऑफ द लिगेंड शुड बी एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, then only can exhibit linkage isomerism। अच्छा linkage through oxygen కావచ్చు, linkage through nitrogen కావచ్చు, linkage through nitrogen కావచ్చు, oxygen కావచ్చు, ఇక్కడ linkage through oxygen ఇక్కడ nitrogen। then yesterday also we discussed organic reaction में when ionic compound में बनता है oxygen से, covalent compound में nitrogen से बनते हैं, conditional linkage isomerism। अच्छा मैंने बताया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स है, कैटायन एनायन बोथ शुड बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स, बोथ आर कॉम्प्लेक्स है, कैटायन एनायन, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अच्छा लिगेंड आइसोमेरिज्म नॉट गिवन इन आवर सिलेबस है। अच्छा ये लिगेंड आइसोमेरिज्म नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक है, पॉलीमराइजेशन आल्सो नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। अब देखिए एनसीईआरटी में लिगेंड आइसोमेरिज्म नॉट गिवन है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म आल्सो नॉट गिवन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बट प्रीवियस क्लास क्वेश्चन आल्सो आप देख लीजिए, दे नेवर आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लिगेंड एंड पॉलीमराइजेशन। एलिमिनेशन मोड में होता है ना, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा एनसीईआरटी में कोई नहीं है, वो आंसर नहीं होता 99%, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अच्छा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही वाला फंडा है, आप याद करो। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जीआई है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए नो जीआई, नो जीआई, बिकॉज जीआई का मतलब एडजेसेंट पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन सिस है, अपोजिट पोजीशन ट्रांस है। अच्छा ओनली 2 लिगेंड्स हैं, both are adjacent also, both are opposite also, there is no geometrical isomerism। coordination number 3 also there is no GH। coordination number 4 में sp3 का नो है, टेट्राहाइड्रल का नो है, because टेट्राहाइड्रल में all ligands are adjacent only, all are adjacent only, there is no opposite है, ट्रांसलेशन नहीं बनता है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनार DSP2 में, स्क्वायर प्लेनार में बनता है, बट इसमें MA2B2, यस MA2B2 मींस
कैसा ऐसा लिखूंगा मैंने, स्टेप लेना रहा है। अच्छा ये ऐसा लिखूंगा, बी भी ऐसा लिखूंगा, ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया। सिस कैसा लिखूंगा, अच्छा ये बी भी, ये सिस हो गया। मतलब यम ए टू बी टी, I go for it. Coordination number simple, I go for it. Coordination number 4 स्क्वायर प्लेन आर में अच्छा क्या क्या बनता है, I go for simple formula बेस लेना। अच्छा यम ए टू बी टू यस, अच्छा यम ए टू बी सी यस, अच्छा यम ए बी सी डी, अच्छा आपके लिए 3GI बनता है, प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा यम ये टेकन ट्वाइस नो, ये मीन्स सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ये इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है नो, बट यम ये भी टेकन ट्वाइस यस। अच्छा you have any doubt है, you can see the our video yesterday only, I sent the video in our group है, you can check it. ये बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए नो जी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए नो जी है, नो जी है। ट्राइगोनल बाइबोलर एडजेसेंट है, अपोजिट नहीं होता है, नो जी है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जी आई, डेफिनेटली जी आई, बट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 में क्या क्या है अब बताओ, यम ए 6 नो, ऑल आर सेम काइंड नो, यम ए 5 बी नो, यम ए 4 बी 2 यस विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा देखो इज ऑक्टाइडल है, ऑक्टाइडल है। अच्छा ए 4 बी 2 मीन्स शैल राइट ये बी बी, दिस इज सिस, both are adjacent. Shall I write one more? I with respect to B only you can go for, don't go for A. अच्छा B B remaining A etc. अच्छा यम A4 B2 yes, यम A4 BC yes। अच्छा वेरी वेरी एग्जाम्पल वेरी मच इंपॉर्टेंट है, यम A3 B3 है, FAC मेरिडोनियन, यम A3 B3 के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, मेरिडोनियल है एंड फेशियल आइसोमेरिज्म, यम A3 B3। अच्छा ये भी बनता है यम ये टेकन ट्वाइस है B2, इसमें भी सिस एंड ट्रांस है दोनों, ये भी GA है। बेस्ट एग्जांपल है, आई एम टेलिंग यू बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, बेस्ट एग्जांपल है CO EN टेकन ट्वाइस Cl2। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स दिया मैंने। अच्छा ए कॉम्प्लेक्स में अच्छा देखो ऑक्टाइडल मींस ऑल आर परपेंडिकुलर होंगे, देखो ऐसे ऐसे लिखूंगा मैंने, ये EN है, ये भी EN है, बाइडेंटेट लाइगेंड, बाइडेंटेट मींस टू वैलेंस टू वैलेंस। अच्छा Cl ये बनता है सिस है, एम आई राइट, ये सिस है। अच्छा इसका ट्रांस कैसे लिखूंगा, अगेन आई गो फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ट्रांस देखो, ट्रांस कैसे लिखूंगा, ये EN है, ये EN अपोजिट साइड है, ये Cl है, ये Cl है। अच्छा एक सिस है एक ट्रांस है, देखो अच्छा यहां देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन पे बनता है, सिस में देयर इज नो सिमेट्री है, सिस में डी फॉर्म एल फॉर्म बोथ बन सकता है, बट ट्रांस में सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यू कैन कट द प्लेन है, टू इक्वलॉप्स होता है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनता है डी एंड एल पे, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा, यम ये टेकन ट्वाइस B2, this complex। अच्छा in order to exhibit optical isomerism one of the ligands should be bidentate ligand होना चाहिए, this is very important concept in optical isomerism। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही मॉडल्स है, मॉडल आप देख लीजिए, एंड वन मोर है यम ABCDEF के लिए 15 GI है एंड 30 एनोसोमर्स है,
अच्छा M A B C D F, M A6 type nothing but M A B C D means M A B C D, all 6 ligands are different है. इसके लिए how many GI है? 15 GI है. how many optical है? 30 optical. यही फंडा, राइट? चलो नाउ आप देख लीजिए. अच्छा स्वेप दोनों कॉम्प्लेक्स हैं. अच्छा मॉडल्स आप देख लीजिए. सिस एंड ट्रांस है, बिकॉज़ सिस प्लैटिन इज यूज्ड फॉर एंटी कैंसर क्यूरिंग. सिस एंड ट्रांस है देखो. अच्छा मैंने बताया M A B C D के लिए कितना? M A B C D के लिए 3G है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्लास का है. प्रीवियस क्लास का नीट का क्वेश्चन है, आपको जेई का क्वेश्चन भी था. अच्छा ये को फिक्स किया, देखो ये को फिक्स किया, यहां बी लिखा, यहां बी लिखा, देखो BC लिखा, DC लिखा. यू कैन चेंज एनी वन, 3 आइसोमर्स भी बनते हैं. अच्छा फिक्स है M A B C D के लिए 3 है, M A B C D F के लिए 15 ज्योमेट्री. लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हमने बताया M A4, लाइक M A4 B2 कॉम्प्लेक्स है. अच्छा वो याद करो, आपको सिंपल होता है. अच्छा M A3 B3 है, क्या है? FAC एंड मेरिडोनियन है. अच्छा देखो ये वाला, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, A3B है. अच्छा देखो M A B2C2 पॉसिबिलिटी देयर, मतलब ये भी पॉसिबल है. M A2 B2C2 आल्सो पॉसिबल है. अच्छा देखो ये वाला हमने डिस्कस किया. ट्रांस के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है. बहुत ऐसे मसर पॉसिबल है. बेस्ट एग्जांपल यही वाला है, यही वाला बेस्ट एग्जांपल. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. सिंपल फंडा आप याद करो. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वन ऑफ द लिगेंड शुड बी बाइडेंटेड लिगेंड. यही एग्जांपल दिया. वन सेकंड देखो, वन ऑफ द लिगेंड शुड बी बाइडेंटेड लिगेंड. कंपल्सरी वन लिगेंड शुड बी बाइडेंटेड लिगेंड, then can exhibit optical isomerism. These are only given. And the last है metal carbonates, organometallic compounds. अच्छा metal carbonyl compounds में carbonyl groups है, nickel etc. And most important thing is organometallic compounds. ये वाला organometallic compound है best example. Organometallic compound carbon metal bond is organometallic compound. इसमें 3 टाइप्स हैं, लास्ट टाइप हम आएंगे. अच्छा फर्स्ट टाइप देखो, सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. बेस्ट एग्जांपल है सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए ये वाला मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है. अच्छा देखो ये वाला एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है. ऐसा दिया आई थिंक CH3 एक CH3 ऐसा, बिकॉज़ डाइमर फॉर्म होता है ना, एक CH3 ऐसा. अच्छा देखो मेटल कार्बन है, मेटल कार्बन बॉन्ड है. Like you know, RMGX also example for this metal carbon bond, organometallic compound is sigma bonded. अच्छा pi bonded के लिए एग्जांपल है, ये देखो ये वाला pi bonded के लिए GCS salt. फर्स्ट pi organometallic compound जो है it is GCS salt. अच्छा they may ask the formula for what is GCS salt है ये वाला. अच्छा eta represent number of carbon atoms. अच्छा नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो 1 2. ईटा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जीसीएस सॉल्ट बोलते हैं. अच्छा देखो ये वाला फेरोसिन है. अच्छा ईटा 6 अंटानोन, फेरोसिन ईटा 5 अंटानोन, फेरोसिन ईटा 5 अंटानोन. इनको नंबर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनेन अंटान. एरोमेटिक कांपाउंड ఎలా రాస్తాం మనం? अच्छा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड एरोमेटिक कांपाउंड, ये वाला एरोमेटिक कांपाउंड नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज. फिर 5 बॉन्ड है. अच्छा ईटा का मतलब 5 कार्बन है, देखो 5 कार्बन है.
अच्छा ये क्रोमियम बेंजीन के लिए 6 कार्बन, ईटा 6 कार्बन है, बेंजीन है 6 कार्बन है, सिग्मा बॉन्डेड pi बॉन्डेड, and now last one is a sigma pi. अच्छा ये देखो सिग्मा pi, this is very important, the sigma pi. अच्छा what is the bond, this type of bond is sigma pi, sigma pi. अच्छा ध्यान से क्वेश्चन बनता है इसमें, अच्छा वेरी रेयर केसेस देयर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन. अच्छा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टू में सर कंक्लूड इट, लास्ट पॉइंट है. अच्छा मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मैंने आयरन कार्बोनाइल, देखो मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड है, देखो मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड. अच्छा मेटल में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, यू नो मेटल लिगेंड में व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर डेटिव बॉन्ड. अच्छा देखो ये मेटल है, ये मेटल है, मेटल में वेकेंट है, देखो मेटल में ये मेटल है, मेटल में वेकेंट है, ligand can donate a pair of electron, no doubt, this is a dative bond. अच्छा जनरली बनता है ये वाला, ligand can donate a pair of electron, metal can accept, दोनों के बीच में dative bond है, ये dative bond है. now metal ion में completely filled ऑर्बिटल भी था, फॉर एग्जांपल मैंने Fe+2 लिखा, Fe+2 में क्या है 3d6 है. अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड वाटर में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में सम ऑफ द मेटल आयंस आर कंप्लीटली फील्ड है, एक दो कंप्लीटली फील्ड है. अच्छा ये कंप्लीटली फील्ड लिया मैंने, देखो ये कंप्लीटली फील्ड है मेटल में, यहाँ देखो आई थिंक यहाँ लिखा कंप्लीटली फील्ड है. अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए MOT कैसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड MOT कैसा है. अच्छा अकॉर्डिंग टू MOT कार्बन मोनोऑक्साइड में सिग्मा 1s2 shall I write sigma star 1s2, shall I write sigma 2s2, sigma star 2s2. अच्छा pi 2px2, pi 2py2, अच्छा सिग्मा 2pz2, am I right? अच्छा रिमेनिंग क्या है, स्टार pi 2px, स्टार pi 2py, अच्छा सिग्मा स्टार 2p, these are vacant orbital ना, am I right? these are vacant orbital ना. अच्छा ये देखो स्टार है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेकेंट है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेकेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एंटी बॉन्डिंग इज वेकेंट है. अच्छा एंटी बॉन्डिंग इज वेकेंट है, सो मेटल में कंप्लीटली फिल्ड है. अच्छा एक और बॉन्ड बनेगा, दिस कॉल्ड बैक बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग है. सिग्मा pi both are formed, sigma is formed between carbon and metal है, vacant metal है, pi is formed between completely filled metal ion and vacant orbital in anti bonding molecular orbital में. that's why you know metal carbonyl compounds है, particularly iron carbonate, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोस्ट स्टेबल है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन के कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ऐसा इजीली ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस टिश्यूज सर ऑलमोस्ट स्टॉप्ड होता है. अच्छा वी गो टू कोमा और डायरेक्ट टिकट टू हेवन. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है. अच्छा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बॉन्ड कम लेस स्ट्रेंथ है, ऑक्सीजन रिलीज इजीली होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस टिश्यूज वेरी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं आपका, बट प्रॉब्लम होता है इसमें प्रॉब्लम होता है. अच्छा यहाँ प्रीवियसली क्वेश्चन आस्क है, अच्छा MC बॉन्ड लेंथ है, अच्छा मेटल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. अच्छा सर मेटल में नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है, यस नहीं बनता है. अच्छा मेटल में सम ऑप्शन में आप देख लो प्रीवियसली मेटल का नेगेटिव चार्ज भी दिया, मेटल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. अच्छा मेटल एक बॉन्ड सपोज मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, गिवन 4 ऑप्शन में which is having less oxidation state. अच्छा metal having negative oxidation state है or less electropositive, less positive or more negative. More negative means
मोर टेंडेंसी कैन फॉर्म ए पाई बॉन्ड है। ये मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ ज्यादा है, CO बॉन्ड लेंथ कम होता है, देन CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ఇప్పుడు मेटल हैविंग नेगेटिव CO बॉन्ड डिक्रीजेस। मेटल में मोर पॉजिटिव है, मतलब मोर नेगेटिव होने मीनिंग है, मेटल में लेस पॉजिटिव है, इसको उल्टा होता है, CO बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड है, आपके पास प्रीवियस के क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। एनीवन हैविंग क्वेश्चंस है? आई एम टेलिंग यू व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड है। ये लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अच्छा देखो, क्वेश्चन आस्क्ड है, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड है। अच्छा फाइनल है। अच्छा हमको, अच्छा ऑप्शन ए गिवन CO4 टेकन 4 माइनस है। ऑप्शन बी है FeCO टेकन 4 टाइम्स 2 माइनस है। ऑप्शन सी है MnCO 6 टाइम्स प्लस है। अच्छा ऑप्शन डी है NiCO taken 4 times. Question asked, which are the following longest CO bond length? Longest CO bond length. This is the question. अच्छा देखो, अब हमने क्या क्या बताया, इसका नेगेटिव ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ज्यादा है। व्हेनेवर ई बॉन्ड ज्यादा है, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। अच्छा, विच मेटल है मोर नेगेटिव चार्ज है, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, ये मीनिंग क्या है, बॉन्ड लेंथ है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है, लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। लॉन्गेस्ट बॉन्ड का मतलब लीस्ट स्ट्रेंथ है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड मीन हाईएस्ट स्ट्रेंथ होता है। अच्छा, गिवन ऑप्शन में देखो, ये ऑल आर नेगेटिव, न्यूट्रल लाइगेंड से जीरो ना, इसका ऑक्सीजन स्टेट -2 है, इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 है, इसका ऑक्सीजन +1 है, यहाँ 0। किसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप देख लीजिए, किसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसमें ज्यादा होता है। अच्छा -2 मोर बॉन्डिंग है, कार्बन के मेटल के बीच में मोर बॉन्डिंग है, मतलब CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। अच्छा, दे आस्किंग लॉन्गेस्ट मतलब ये वाला होना, लीस्ट कैसा होता है, ये वाला में होना चाहिए। Very simple one. Actually, this kind not only one time, I think 2-3 times these questions are asked regarding to CO bond length strength. More negative charge है, मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। अच्छा, लेस चार्ज ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। Very simple one, previously asked. This is a, in brief, complex compound, very important thing है। अच्छा, compulsory they will ask 3 to 4 questions है। अच्छा, maximum 16 to 20 marks है आपके। Okay, you can go for revise.